Okay, You're live. I can see messages. You can see my messages. You're live. Volume, Sanjeev bhai. There's no volume. Maybe there's volume being. वहाँ पे आ रही होगी शायद volume. We have no idea what's happening. Chintan bhai, the moment this video ends, we will be live. Which video? You Acha, can हाँ. Right. I get it. I think I should raise this. This is better, I think, right? More light. We have not gone live yet. We are live. Good evening, namaskar, Jai Hind. Jai Hind. आप सबका स्वागत है. Today we are doing our first live session. In fact, it was planned yesterday, and we had to put it off for some other pressing assignments that had come up urgently. So everybody knows me who has been watching this channel. I'm Samir Jolly, and with me today is my dear friend Chintan, and we incidentally share a friendship spanning almost 2 decades now, and Eventful. Eventful, yeah. We are both associated with Art of Living. That's one of the main reasons, and I, of course, am full time and traveling in the field most of the time. And Chintan bhai is in Bombay. So Chintan bhai Bombay से हम लोग साथ में भी काम किए हैं in the ashram as ashramites. That was year 2003. Yes. So तब से अब तो much as they say, passed in the Ganges since then. So what motivated us to have this session was कि सुभाष चंद्र बोस जी का ये 125th birthday कल हुआ है, और there was a time when it was very difficult to bring these topics up in this country, but of late there's a lot of attention on Subhash ji. और एक और coincidence ये है कि my father's name was also
he was also named after him. He was late Brigadier SC Jolly, Subhash Chandra Jolly. तो ये अपने आप में कोइंसिडेंस रहा मेरे जीवन का, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि आई हैव ट्रैवल्ड टू many of the places associated with Azad Hind Fauj and नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो उसके चलते कई चीजें थी जो मैं पहले भी सोचता था कि मुझे शेयर करनी चाहिए, और हमारे दोस्त चिंतन भाई हमसे कई बार पूछते थे. He would push me a lot, and I have sort of been avoiding him, or whatever, for whatever reason. मैंने बोला ठीक है यार, बाद में बात करते हैं, I can't discuss everything, things like that. So yeah, इससे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, I don't know, so many reasons. So finally, once we decided to go live to do this session, so मैंने बोला there is no better person to put these questions to me than Chintan Bhai, since he has been asking me these questions all this while, since a couple of years now at least. So over to Chintan. Chintan, you can. Namaste. All is in your book. Yeah. Jai Hind सबको. Finally, we have managed to convince Sameer Jolly ji, and he is the son of a veteran, and the kind of knowledge and information that he is privy to, and मैं literally कुरेदता रहा हूँ इनको कि कुछ बताइए हमें, जो इन्होंने जो extensively travel किया है across the length and breadth of this country. मैं बहुत ही कम लोगों को जानता होगा जिन्होंने इस तरह से ट्रैवल किया है और इतने सारे लोगों को इन्होंने जो है मेन स्ट्रीम में लाया है, और ऐसे डाइवर्सिटी के अक्रॉस जो इन्होंने काम किया है, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द हाईएस्ट मैनेजमेंट, टू द आर्मी, टू I don't know, to the Naxal level and even terrorist level. He has reformed so many of our misguided youth, and we actually owe him really a lot, I feel. So there are some secrets तो नहीं कह सकते, some information that he has acquired, knowledge that he has gained, and today is the perfect time to let him go on this. So आप कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? हाँ, कहाँ से, whatever you are comfortable with, how you relate to Subhash Chandra Bose जी, या जैसा आपको उचित लगे. समीर जी, मुझे जैसे सुभाष जी के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, बट जो इवेंटफुल जहाँ से शुरुआत होती है आजाद हिंद फौज की, जब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो है छोड़ा था और वो आए थे, फिर उन्होंने द फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ INA एंड आजाद हिंद फौज, and my parents both are from my grandparents both migrated from Karachi during partition, and Subhash Chandra Bose was so famous that my buaji and my tayaji told me that they had named the street in Karachi where they used to live as Subhash Chandra Bose. That was renamed as that street, which is how famous he was in that part of the world. And I was really appalled that this man has this kind of glory that he deserved, and will be unraveled more by Sameer ji. And please tell us the time after that. Yeah, पहली बात तो आपने जो what you have rightly put कि आप जिस स्ट्रीट में आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे कराची में, उसका नाम ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्ट्रीट था. ये अपने आप में दर्शाता है कि he was popular across the subcontinent, not just in India. बल्कि मैं तो यहाँ तक पूरे विश्वास से कहता हूं कि अगर नेताजी उस वक्त भारत आ जाते या उनको आने दिया जाता तो शायद हमारा देश का बंटवारा ना होता. एंड टुडे वी वुड हैव डेफिनेटली बीन अ सुपर पावर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड. वी वुड हैव डेफिनेटली बीन द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड. When the British left us, we had an army of 2.5 million soldiers, which got divided, and we have wasted many years fighting each other, India and Pakistan, and wasted resources on these wars. So going back to when Netaji escaped from that house arrest, he went on to a fast when he was arrested by the British. तो उनको लगा कि अब भारत में रहकर ये
ये युद्ध को मैं आगे नहीं ले जा सकता, मैं ये क्रांति का जो उनका सपना है, भारत को आजाद कराने का सपना है, ये भारत के अंदर रह के नहीं पूरा होने वाला। ही हैज टू लीव दिस कंट्री। बल्कि मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि अभी ये दिस फ्रॉम अ स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट, कई लोग के पता नहीं भाग्य में होता है कि वो जब अपने देश से बाहर जाके काम करते हैं तो उनका ज्यादा बड़ा नाम होता है। मुझे मालूम नहीं है कि शायद सुभाष जी का, देखिए, ऐसे भाग्य ऐसे ही रहा, वो भारत में रह के भारत के लिए इतना नहीं कर पाए जो भारत से बाहर रह के उन्होंने किया। और यहाँ तक कि वो ऐसा भी मानते हैं कि ही केम बैक एंड ही वाज एज गुमनामी बाबा, जो भी है। तो तब भी वो भारत में ही थे, पर भारत में रह के जो भी कारण रहे, वो उस स्तर पे कुछ नहीं कर सके। उनको जो श्रेय नहीं मिला उसका। श्रेय अब मिलना शुरू हुआ है, तो श्रेय नहीं मिला। और वो उनका मतलब, मैं कहता हूं कि भारत के बाहर रह के ही वो भारत के लिए सबसे ज्यादा कुछ करने पाए हैं। तो वी ऑल नो द स्टोरी दैट ही हाउ ही मैनेज टू एस्केप थ्रू पेशावर से वो अफगानिस्तान, फिर रशिया, रशिया से जर्मनी गए और वहां पर जाके उन्होंने हिटलर से, हाँ, हिटलर से भी मिले, आजाद हिंद फौज जो इंडियन लीग की स्थापना की। और उसके बाद he wanted to raise an army and bring it via the Russian पोर्ट। territory through अच्छा, ओ, Afghanistan and then attack the borders of India, ब्रिटिश। yeah, the British here in India। पर वो जब जर्मनी का रशिया के साथ वॉर छिड़ गया, so then that plan had to be dropped। So then he got into a submarine, और उसमें भी उन्होंने बहुत ये किया कि he convinced the Germans। जर्मनी ने कई ऐसे लोगों को सपोर्ट किया था, ऐसे रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट किया था who were from allied nations or nations which were subjugated by the allies। तो he was all the others who were in their this thing, in उनकी देखरेख में जो भी थे बाकी ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स, उन्होंने, जर्मन्स ने बाद में उनको काफी सारों को तो एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। बट सुभाष चंद्र बोस वॉज एबल टू कन्विंस द जर्मन्स कि आपका जो रिश्ता बिगड़ रहा है जापान के साथ, वो मैं रिश्ता सुधार पाऊंगा इफ आई रीच जापान। So in their own interest, in their own self-interest, the Germans provided them a submarine, और वो submarine में बैठ के he went halfway right across the अफ्रीका के पार जाके, और फिर वहां से एक जापानीज सबमरीन ने उनको पिक किया। अमेजिंग नेगोशिएशन स्किल्स। हाँ, अमेजिंग नेगोशिएशन स्किल्स। व्हाट अ जनरल। और he was the only civilian transfer to happen underwater in the whole of the Second World War। मतलब कोई सिविलियन आदमी का एक सबमरीन में बैठना, it is out of question, that also in war situation, but he was the only civilian transfer in the entire Second World War। तो उस स्थिति में in high seas when the submarines are going up and down, he was able to transfer from one submarine to the other। और कितने 73 days or something he was in the submarine, और वो अंडर वाटर रहे, और विद नो प्रायर नेवल ट्रेनिंग, को ऐसा उनको कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, बट ही हैड दिस यूनिक करिश्मा, ऐसा उनका मतलब। मैं समझता हूं कि उनके जैसा वर्ल्ड व्यू, उनके जैसा विजन उस समय पे किसी भी इंडियन लीडर का शायद नहीं था। He was the only one who could visualize that this is how this country could get freedom। And most important of all, मैं कहता हूं कि look at his strategy, the way he thought कि भाई ये जो अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना इन्होंने जो खड़ी की है, हमको और कुछ नहीं करना, we have to only shift their loyalty। उनकी हमने लॉयल्टी शिफ्ट कर दी तो अपने आप से ये अंग्रेज यहां से चले जाएंगे। एट द पीक ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन इंडिया, दे वर नॉट मोर देन 50,000 to 1 lakh Britishers in this country। That's it. Actually, I would say just set their loyalty right instead of shifting their loyalty। Yes, set their loyalty and turning it around totally। yes। और हमारे देश में यही 50,000 1 लाख के करीब जो अंग्रेज थे, वो 30 करोड़ लोगों के ऊपर वो राज कर रहे थे, सिंपली बिकॉज वो, जैसे कहते हैं ना कि एक जो वो होता है, हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में उसके पाँव पे चेन बांध के ट्रेनिंग दे दी जाती है कि तुम
अपना चेन खींचने Slave. का, चेन बहुत मजबूत है, तो बड़ा हो के जब वो इतना मजबूत भी होता तो भी वो चेन नहीं नहीं खींच तोड़ता. पाता. सो आई थिंक आवर कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम द सेम सेंस ऑफ स्लेवरी, some of which also existed because of which हम लोग ने we did not give due regard or due status to Netaji all these years. Absolutely. I mean, from there on, of course, he went and met Prime Minister Tojo of Japan. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजाद हिंद फौज पहले ही खड़ी हो चुकी थी. हाँ, जो यूनिट जो कैप्चर्ड किया गया था, जो जो ब्रिटिशर्स की यूनिट जो जर्मनी ने कैप्चर करके रखी हुई थी जर्मनी में, वो हाँ, यूनिट इनको दी गई. हाँ, एक्चुअली what he raised in Europe was the Indian League. हाँ, वो एक सेना की टुकड़ी रेज की थी, बट ही वो सेना की टुकड़ी वहीं रह गई. ये what had happened. Now let me give you a little background. सुभाष चंद्र बोस जी के साउथ एशिया में आने से पहले ही यहाँ पर एक कर्नल मेजर मोहन सिंह थे, जो who was in the he was the British army, and the Japanese had raised through him the Azad Hind Fauj. ये पहले ही रेज हो चुकी थी. और पर क्या था, you know, it is not just a question of raising an army, it is a question कि उसके अंदर एक ऐसी लीडरशिप होनी पड़ेगी जो जो that vision and leadership. तो वो जो मेजर मोहन सिंह थे उनके प्रति जो बाकी that time we must remember that जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने अनाउंस किया था कि भाई आर इंडियन पीपल शुड नॉट जॉइन द ब्रिटिश मिलिट्री एफर्ट. बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग वो अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहती थी ब्रिटिश को, तो उन्होंने बोला था सब मुस्लिम्स को ज्वाइन करना चाहिए आर्मी को. सो द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द तब जो ब्रिटिश आर्मी थी, इंडियन ब्रिटिश आर्मी, उसके अंदर 43,000 मुस्लिम्स थे. Oh my God. Yeah. So in that situation, the Muslim officers who were prisoners of war in Singapore, they did not want the leadership of Major Mohan Singh. So they and all the other and within the other officers also, whether they were Sikhs or Hindus or whatever, वो मेजर मोहन सिंह की लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर रहे थे. उन्होंने बिकॉज यू नो एट दैट लेवल यू नीड अ लीडर जो सबको साथ में लेके चल सके, तभी ये इतना बड़ा काम हो सकता था. तब जाके ऑल दीज पीपल रिक्वेस्टेड द जापानीज कि आप अगर सुभाष चंद्र बोस को बुला लेंगे तो ये काम कामयाब होगा. तो फिर जाके जापानीज इंसिस्टेड ऑन टू जर्मन्स दैट प्लीज रिलीव सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम जर्मनी और उनको हमारे पास भेजो. एंड फिर जब वो यहाँ पे आई भी, तो देखिए एक उन लोग की स्ट्रैटेजी एक बात है, बट सामने आदमी के अंदर एक वो करिश्मा, एक वो ड्राइव, एक विजन होना पड़ेगा. तो when that time the wartime prime minister of Japan was Prime Minister Tojo, तो प्राइम मिनिस्टर टोजो को मिलने से पहले ही सुभाष चंद्र बोस कई उधर के सीनियर जनरल्स और उन लोगों से मिले, एंड फाइनली ही हैड अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर टोजो. तो प्राइम मिनिस्टर टोजो वाज सो इम्प्रेस्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि उनको स्पष्ट हो गया कि अगर भारत का कोई लीडर होना चाहिए तो ही इज द मैन. एंड उन्होंने पूरा उनपे ऐसा विश्वास जताया कि आई गिव यू सॉर्ट ऑफ अ ब्लैंक चेक कि आप करिए काम, आपको हम फुल सपोर्ट देते. एंड आई थिंक एट माय पर्सनल लेवल आई रियली फील इंडेप्टेड टू जापान टू दिस डे फॉर हेल्पिंग नेताजी एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, ताकि वो लोग आके इतना बड़ा आक्रमण किए और they were able to drive out the British from India. So I think this our generations of Indians should be indebted to the Japanese. Indebted, yes. So that army also had Muslims and Sikhs and all religions actually. Of course. In fact, even his driver was yes, Muslim. Yes, there was, you know, देखिए वहाँ उस टाइम पे there was no divided India, there was one India. One country. और उसमें British Indian only Muslim League was the one that created problem.
Yeah, actually, after the Battle of 1857, क्या ब्रिटिश created a theory of martial race. उन्होंने बोला कुछ मंगल पांडे was a Brahmin incidentally. तो See. मंगल पांडे because he was leading the 1857 mutiny, तो अंग्रेजों ने बोला ये बुद्धिमान लोग हैं, इन लोग को तो फौज में नहीं लेना चाहिए, Hmm. मutiny कराते हैं. तो उन्होंने बोला कि Good मार्शल Dana. रेस होती है, उसको ही हम लेंगे. सो ओनली जाट, Hmm. सिख्स, गुरखास, पठान इन लोग को लेने लग गए. एंड दे क्रिएटेड अ थियरी ऑफ मार्शल रेस लाइक so many other theories they created. In fact, Divide and in rule. army mein the Brahmins they started recruitment only after India got independence. I see. हाँ Really? जी, हाँ, भारत की आजादी तक ब्राह्मण अच्छा. 1857 से लेकर ओहो. 1947 तक नहीं लेते थे फौज में. ओहो, ये बात तो पता ही नहीं मतलब किसी को. ब्रिटिश इंडियन आर्मी में. हाँ. सो एनीहाउ, सो वील गो बैक टू आवर सब्जेक्ट. तो क्या हुआ, ये आजाद हिंद फौज खड़ा किया गया. हम्म. और मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो मिस करते रहे हैं हम लोग, वो उन लोगों की है जो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जी ने वॉलंटियर्स मांगे और उसमें से 20-22 हजार लोग खड़े हो गए कि हाँ, हम आपके साथ आपकी प्राणों की अपनी आहुति दे देंगे. तब तक कई सारे जो ऑफिसर जिन्होंने आजाद हिंद फौज भी ज्वाइन कर लिया था, वो भी उन लोग की लॉयल्टी डगमगा रही थी. दे वर नॉट श्योर वेदर now earlier they were officers in the British Indian Army, that now they should be working towards with Netaji for whatever reason. तो ऐसे समय पर नेताजी ने क्या किया, he has also gone and recruited people from the local populations. तो वहां पर Yes. मैं आपको with grace of पूज्य गुरुदेव, हम I have had the opportunity of starting Art of Living in Myanmar, Burma. तो Right, right. yeah, this Oh. happened about more than 10 years back, a decade back. तो वहां पर आप जाएंगे तो आज भी वहां पर we have if you talk about people of Indian descent और हिंदू नेपाली जो भी बोलेंगे आप, तो हम्म. 3-4 लाख तमिल है, 3-4 लाख बिहारी ओह. डिसेंट है, 3-4 लाख नेपाली है, गोरखा डिसेंट के. अच्छा. तो सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां से भी नॉट जस्ट बर्मा बट सिंगापुर, मलेशिया, ये सब कंट्रीज में देयर वाज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ तमिल्स आल्सो, राइट. अच्छा, तो ये बताइए ना कैसे, कौन से ईयर में कि सिंगापुर गए, कौन से ईयर में, जब वो कोहिमा के कितना टाइम By the पहले था ये? time he actually another reason for they say that for the defeat of the Azad Hind Force, मतलब at one level it got defeated on the borders. Of course वो भावना रेड फोर्ट तक पहुंच गई जिसकी वजह से देश आजाद हो गया, पर Right. it was 1 or 2 years too late. अगर वो यही जो आक्रमण 1-2 साल पहले किया गया होता, तो वो लोग दिल्ली तक पहुंचते थे, उसमें कोई संदेह नहीं है. बट बाय द टाइम नेताजी रीच्ड, he left Germany and reached Japan, the tide of the war was already shifting, yeah, in favor of the allies. So तो नेताजी का ये जो कालखंड है जिसमें उन्होंने ये पूरी सेना को खड़ा किया और युद्ध किया, जिसमें he has become like a sparkling star of our country and the subcontinent, वो मात्र साल सवा साल का ही पूरा प्रकरण है. तो उस साल में उन्होंने even he recruited even civilian women and yes, men and trained them, or he made them so battle hardened. Absolutely. To make them battle hardened within 1 year. और वो कोहिमा का जो युद्ध था वो बड़ा निर्णायक युद्ध था. निर्णायक युद्ध था. आप देखिए कि उनकी फौज में जो एक्चुअली जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जो ट्रूप्स ज्वाइन किए थे आजाद हिंद फौज में, वो देवर मोस्टली तब ज्यादातर रिक्रूटमेंट इधर पंजाब में और एनएसपी में होती थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको अभी खैबर पख्तूनवा बोलते हैं पाकिस्तान में. सो देवर ऑल पंजाबी जाट्स, केपीके, पंजाबी जाट्स, पठान, ऐसे लोग थे. 50% कॉन्स्टिट्यूट वही थे. तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, व्हाट वर द रेस्ट ऑफ द पीपल, ये तमिल्स थे फ्रॉम सिंगापुर, मलेशिया, एंड a lot of people of Malaysia. Yes, lot of people of Bihari descent from Burma. I see.
बर्मा में अभी मैं अपना मतलब फर्स्ट हैंड अनुभव बताना चाहूंगा। द वेरी रीजन व्हाई आई वांटेड टू डू दिस सेशन हाँ वाज हाँ कि हाँ हाँ, मैं प्लीज। हाँ जी, तो बर्मा में ये है अपना एक जगह है जियावड़ी बोलते हैं। हाँ, अच्छा। जियावड़ी करके एक जगह, वहां पे 82 विलेजेस हैं विच आर फ्रॉम दी बिहारी डिसेंट, मतलब उनके नाम भी वैसे ही है, रामपुर, सीतापुर। So it's in the middle of Burma. It's almost like the middle of Burma. You have the 82 village, और उसके पास में ही एक और जगह फी करके है, उधर में 132 विलेजेस है, अगेन ऑल अच्छा बिहारी डिसेंट। तो सुभाष अच्छा, चंद्र बोस जी ने क्या किया, ही मेड हिज हेडक्वार्टर्स देयर, आई सी। एटलीस्ट बेस कैंप, मतलब मे बी मेन हेडक्वार्टर मस्ट बी इन रंगून। तो हम्म। वहां पर उन्होंने यहाँ के जो लड़के थे, बिहारी लड़के थे, सारे बिहारी हम्म, डिस्ट्रिक्ट के, हाँ उनको हाँ। भर्ती किया, एंड ही रेज्ड 2 battalions there. This is from what I hear from the people of those villages. हाँ, Right. तो वहां पर with grace of कुछ बोलते हैं, I had organized a YTP program, और वहां पर मैं जाता रहा हूँ अदरवाइज ऑल्सो। तो For the benefit of our viewers, you should tell them what is YLTP. The या, long form is right. Youth. YLTP is the youth leadership training program which we do for the rural youth. Yeah, or it is to bring a sense of citizenship and a sense of service in them. तो ये ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष शिविर होता है, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर। तो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि वहां पर आज भी अगर आप जाओगे ना, तो दैट प्लेस इज रिप्लीट विद इंसिडेंट्स ऑफ नेताजी। वो ऐसा बोलेंगे, अरे सर हमने नेताजी को यहाँ पे लस्सी पिलाया था, जैसे अभी आप पानी पी रहे हैं। हाँ? फिर बोले, एंड दे कॉल इट आईएन सेना। हाँ, अच्छा। आईएन सेना बोलते थे ये लोग। तो बोलते सर आईएन सेना का हॉस्पिटल इधर होता था। फिर वो कुछ बंगला दिखाएंगे, बोलेंगे सर ये ब्रिगेडियर ढिल्लन इसमें रहते थे, या Oh, ऐसा ऐसा करके बताते। हाँ, so you must और have met really old people, that means. yes, I did. I have met people who have were there. There is one master ji I met who was there when Subhash Chandra Bose was there, and उन्होंने कुछ कुछ उनसे प्रश्न भी पूछा। बोले हम उनके लिए वो नेट्स बनाते थे, तो कैमोफ्लाज के नेट्स होते हैं ना, हम्म। तो ग्रीन ग्रीन मटेरियल के, हाँ हाँ जैसे हाँ हम वो बुनते थे। हाँ और हाँ। बोले कि हमने नेताजी से भी पूछा कि आप वो जो अब आज भी इंडियन आर्मी में दे आर यूजिंग, they use Roman script for writing। तो पूछते थे अच्छा। कि आप रोमन स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं। तो नेताजी उनको बोला, हमारा सबसे सैनिक जो है वो हिंदी हाँ, नहीं जानते हैं, तो हमको एक भाषा पे इनको लेके चलना पड़ता है, तो अच्छा। इसलिए भी हम यही कर सकते हैं। तो वहां पे दे हैड मेड ट्रेंचेस। I हाँ। been to the temple where Netaji came and gave a talk to motivate the वाओ। local youth. तो वहां पे इट इज लाइक एकदम कॉमन कि नेताजी इधर गए थे, फिर यहाँ गए, फिर इधर गए। और ऐसा कोइंसिडेंस रहा है मेरे जीवन का कि नेताजी वहां पे जिस जिस जगह में गए हैं, ऑफ कोर्स बहुतों में गए होंगे, बट मैं आई हैव बीन टू मेनी ऑफ देम, इफ नॉट वाओ, ऑल ऑफ देम, क्या या बात है। लाइक। और वहां का मतलब कॉमन बात है कि आप, मैं एक टाउन है उधर, उसको बोलते हैं, नाम का नाम ही टाउनजी है, टाउनजी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ हिल अच्छा। स्टेशन। हाँ, तो टाउनजी या, तो बोले जी यहाँ पे जैसे मैंने कोर्स ले रहा था, मैंने बोला मेरा कोर्स है वो उधर में उस जगह में आ जाना। कहते वही मंदिर ना जहाँ नेताजी ने टॉक दिया था। अरे वाह, हाँ वही मंदिर है। तो मतलब ऐसा इतने ही साल होता था। बाद भी वही उसी हाँ इवेंट हाँ से हाँ जोड़ा जाता है। हाँ। फिर मेमियो करके एक टाउन है, अभी नाम दे प्यूनले करके कुछ नाम बदल दिया हाँ उन्होंने, हाँ पहले हाँ हाँ। मेमियो बोलते थे। तो मेमियो में देयर इज अ बंगलो विच इज स्टिल देयर, जहाँ पे नेताजी आके रहे थे। ऐसे। और वहां पर मैंने भी जाके फोटो वगैरह खिंचाया अपना। बट जो इंडियन कम्युनिटी है अभी भी जाके नेताजी के जन्मदिन पे वहां जाके थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं, उसकी घर ओह, की साफ सफाई करते हैं। अच्छा। और the gentleman who took me to Burma first time when we were sort of setting this up, when we starting off art of living there, तो तब वहां पर क्या बोलते हैं, मेरे को जो लेके गए थे उनके नाना जी, वहां पे हर कोई मिलेगा ना, बोले मेरे दादाजी भी आईएन सेना में थे, मेरे नाना जी आईएन सेना में थे। तो बोले कि नेताजी का ऐसा करिश्मेटिक पर्सनालिटी था, बोले वो उनका टांगा चलाते थे, मे बी शॉर्ट डिस्टेंस पे कहीं लेके जाते होंगे ऑफिस हाँ। समथिंग लगा। कहते
हमारे नाना जी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी आंख में आंख डाल के देख ले. हाँ? अच्छा. So such was his personality. Of course, then So we we have also owe it to some Burmese people. absolutely. In fact, this is one of the main reasons I wanted to do this program. कि हमारे देश की आजादी में आहुति देने वाले आधे से ज्यादा लोग जो आजाद हिंद फौज में थे, वो उन्होंने भारत देश देखा नहीं था. वो बर्मा में पैदा हुए, सिंगापुर में पैदा हुए, मलेशिया में पैदा हुए. अखंड भारत. हाँ, वो उन्होंने भारत कभी देखा नहीं था. देयर forefathers had come from India, but they No, had actually that is India only, but it is Akhand whatever. Bharat. So what I'm getting at is that वो लोगों ने कभी देखा नहीं था भारतवर्ष, बट वो नेताजी ने ऐसा उनको प्रेरित किया कि वो अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए निकल गए उनके साथ. भाई जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, वो तो इंडियंस ही थे ना, बट ये लोग ने तो कभी इंडिया नहीं देखा था. तो भी ये लोग ऐसे मोटिवेट हो गए. एंड from whatever accounts I have heard that when things got very very tough, जब बहुत ज्यादा इनकी डेथ्स होने लगी, ऐसा होने लग गया, तो there are some deserters who deserted अच्छा. the Indian National Army and अच्छा. went back to the British Army. But Oh. it was very less as far as the locals who had joined from Burma and all these Tamils and Biharis. They were the most simple people from वर्किंग इन प्लांटेशन. उनके बच्चे थे, इंडेंचर्ड लेबर के बच्चे थे, ऐसे ऐसे लोग थे. तो ये लोगों ने इनका, मैं आई थिंक द होल नेशन besides being indebted to Japan has to be indebted to this whole group of youth. Or Burma and Nagas actually. Burma, even Nagas, yes, you are so right, even Nagas. और नागास के साथ भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ अंडरस्टैंडिंग किया था. आई डू नॉट नो डिटेल्स ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग. एंड इवन टुडे इन नागालैंड देयर इज अ टाउन वेयर सुभाष चंद्र बोस जी हैड कम एंड स्टेड. अभी भी वहां पर दे commemorate it and there are many ardent enthusiasts of Azad Hind Fauj or Indian National Army. वो वहां जाके सेलिब्रेट करते हैं. I know some of the people who do it. Recently, our defense minister felicitated someone from Nagaland, saying that they were the first freedom fighters to join the Azad Hind and आजाद हिंद this फौज. movement. Yeah. और मैं आपको एक और बात भी आई वुड शेयर हियर इज दैट जो आजाद हिंद फौज में ये जो लोग काम किए थे, मैं उनसे पूछा भी कि आप लोगों को कुछ पेंशन मिला क्या. बोले नहीं साहब, हम पेंशन के लिए थोड़ी ना किए थे, हम तो कमाल है. अपनी सेवा के लिए गए थे. क्या लोग थे. सबका यही कहना है. बल्कि आप जान क्या के लोग थे. हैरान होंगे कि जो अपनी 8वीं की टीचर है बर्मा में, वहां की लोकल, उन्हीं के दादाजी आजाद हिंद फौज में थे. कमाल है. और उनको कुछ पता ही नहीं बेचारों को कि कुछ उनको मिला भी था नहीं मिला था. बोले जब वहां से वापस आए तो बहुत बीमार थे, कुछ ही देर जिए, उसके बाद वो गुजर गए. तो कुछ मेडल वेडल भी था, वो भी बोला हम लोग ने बेच दिया. मतलब दे वर सच इम्पोवरिश्ड टाइम्स. तो और मैंने इनफैक्ट आई मस्ट से दिस, अगर मेरे इस हमारे वीडियो का ये कुछ ये आउटकम रह जाए तो बहुत अच्छा होगा कि ऐसे उनका उनका कुछ भी इधर कुछ बैंक अकाउंट वगैरह थे, वो भी हमने बहुत मैंने भी हाथ पांव मारे. और आई कॉन्टेक्टेड पीपल इन द आर्मी ऑल्सो कि उनका कुछ एम्यूलमेंट मिल सकता है क्या है, बट ये लोगों नहीं मिला है. आई मीन आई थिंक. हाँ, और अगर ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए विद perhaps the government taking that level of focus on this, तो उनके फैमिलीज को या जो भी उनके recognition या some emoluments can be given as as a one time ex gratia or something. तो ये दे आर दी. हम लोग सब सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट करते हैं, बट उनके साथ जो लड़े हैं, उन्होंने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उनको भी हमको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा. उनको भी हमको, दे मस्ट गेट द ड्यू. दैट आई रियली फर्वेंटली फील. एंड जिस तरह से लता जी के एक गाने में है, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी. रियली वी हैव टू रियली, हम उनका चुका नहीं सकते. मैं तो अब भी मानता हूँ, अभी भी आप वहाँ विलेजेस में जाओगे जियावड़ी में, अभी भी वैसे ही वो सिंपल से लोग हैं. मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ कि यार ये सिंपल से लोगों को कैसे
प्राण उन्होंने फूंक दिए इन लोगों के अंदर, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि वो लोग उनके साथ ट्रेन होके और चल दिए सेना बना के कि हम अपने प्राणों की आहुति देंगे हमारे जो पूर्वजों का देश है उसके लिए। अच्छा ये बताइए, हाँ जी। इनको इतनी लेटेस्ट एम्यूनेशन और गनरी जो है, ये किसने प्रोवाइड की और कैसे जापान वहां ने, लॉजिस्टिक्स हुए? जापान ने किया, टू द एक्सटेंट दैट दे वर आर्म्ड एंड they were armed and got whatever ammunition, it was all Japan. So ओके, we must be grateful to Japan as well equally. so the unit that was captured in Germany and that was given to Subhash ji, that unit got left behind. एक watershed moment है हमारे हिस्ट्री में जो Yeah. No, म्यूटिनी yeah, का है. no. Now the unit that was in Europe was called the Indian League. हाँ, it was a ओके, brigade strength unit, है ना? ओके, और वो जो थी उसको उसको in fact his departure from Germany was extremely secret. तो तब किसी को बता के नहीं आया जा सकता था कि he is ओके. leaving. But उनका commitment था, he had said that these troops will only be used against the ब्रिटिश ऑन इंडियन सॉइल, ऐसा करके कुछ कमिटमेंट था जर्मनी के साथ। तो अच्छा. बट इन द लेटर इयर्स ऑफ द वॉर दीज यूनिट्स वर यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कैंपेन इन द यूरोपियन वॉर। जर्मन्स डिड यूज दिस इंडियन यूनिट्स, they were POWs, prisoners of war, एग्जैक्टली, जिनको voluntarily they joined the एग्जैक्टली. Indian League. So would you like to throw some more light on your Burma expedition, जो आपने जो और भी कुछ बातें बताई हमको बर्मा के बारे में, फिर हम उसके बाद के मोमेंट के आगे चलेंगे. I think we will move on because Burma is the biggest thing from Burma is that जो लोगों ने इतनी आहुति दी है, they must get their due. And Really? मैंने तो एट अ पर्सनल लेवल मैंने काफी प्रयास किया है, मैंने वहां से लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी लाए, जो बैंक थे तब इंडिया में, वो बैंकों के अभी नाम निशान भी नहीं है। ये लोग का कुछ तो तो इनको, कुछ तो जिंदा होंगे जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र होगी उनकी अब यदि तो. लोग जिंदा है, अरे उनका कोई परिवार है, कोई डिसेंडेंट है, किसी को कुछ तो, वैसे उन बिल्कुल, लोग के बिल्कुल. अंदर वो भाव नहीं है, उन लोग के अंदर वो भाव नहीं, कहते जी हम तो सेवा करने गए थे, हम तो किसी पेंशन के लिए नहीं गए थे। पर दीवाने. आई रियली लव दैट। हाँ, उनके अंदर ऐसा रियली. भाव नहीं, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज अ नेशन we owe it to them, that's what I owe feel। it, owe it, absolutely owe it. And it is not even been recognized to date. हाँ, जो पता है, ही नहीं, कोई पता ही जानता नहीं, ही नहीं, पता ही नहीं. जानता ही नहीं। हालांकि हमने इतने लोगों ने इतनी खंगाल खंगाल के आजाद हिंद हिस्ट्री. फौज की बात करते हैं भैया, आधी फौज तो बर्मा, मलेशिया और सिंगापुर से आई थी, हाँ. constituted of people who had never seen this country, Yeah. of the Tamils and Biharis and whoever else। कमाल है, कमाल. हाँ, So we move on to the next event. हाँ That is a जी। watershed moment, which with the mutiny that we speak of, where Karachi and Mumbai harbor पे जो नेवी के शिप्स से, वो हाँ, शिप्स कैसे लॉजिस्टिकली कैसे ऑर्गेनाइज हुए, किसके शिप्स थे, जिसको कौन सी यूनिट्स आके जिन्होंने अटैक किया ब्रिटिश now this is फॉरेन. a very interesting thing। देखिए अभी हमारे देश में अभी काफी बात होने लगी, लॉट ऑफ पीपल हैव डन हार्ड वर्क इन दैट डायरेक्शन, और ये बात सामने में आई है कि जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, जब लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ही अनाउंस्ड दैट इंडिया विल बी गिवन फ्रीडम। विंस्टन चर्चिल was very clear that India should not be given freedom for the next 30 years or whatever। वो तो एकदम ही imperialistic type आदमी था, हाँ? And I mean there is even a He debate। caused a famine in Calcutta and killed Correct, millions, more than what Hitler did. absolutely। So that is also one fact। So मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्लेमेंट एटली थे, now we must see the making of this man also, क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली जब उधम सिंह, अभी रिसेंटली मूवी भी आई उधम सिंह जी वो भी पे, आई थी. तो उधम सिंह ने जब जाके जनरल डायर को इंग्लैंड में मारा है, तो दैट टाइम क्लेमेंट एटली हैड कमेंटेड दैट दीज पीपल, देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला उधम सिंह ने लिया 20 ऑलमोस्ट 42, 21 years के यस बाद. 21 साल के बाद। उसने कहा ये लोग, these people who do not forget, for 21 years इन्होंने आए और यहाँ पे रिवेंज लिया, you cannot keep these people subjugated। So ये भारत को आजादी दिलाने का
एक जो है ना कंट्रीब्यूशन उधम सिंह का भी रहा, क्योंकि बहुत 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 अनरिकग्नाइज्ड। अनरिकग्नाइज्ड, क्योंकि इट इज द मेकिंग ऑफ द डिसीजन ऑफ अ पर्सन लाइक एटली हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने आके तो बताया, वो जो ऑक्सर कोर्ट करते हैं चीफ जस्टिस बट दे हैड नो चॉइस, उनकी पूरी आर्मी ध्वस्त हो चुकी थी, फॉरेनर्स। आई विल और आई विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो, नो चॉइस वाली बात पे। और मैं अभी उधम सिंह की बात की तो मैं उधम सिंह का एक डायलॉग, उधम सिंह जिस जगह से थे वो सनाम है पंजाब में, हाँ। अच्छा। तो आज भी सनाम का कोई आदमी मान लो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में जा रहा हो और उसका पाजी पंजाबी विच कह दो। नहीं कोई नहीं, तो हाँ, सुनिए, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में जा रहा हो तो अक्सर क्या होता है ना कि मतलब आम आम तौर पे होता ही है, बस में कोई जा रहा हो तो आदमी सोचता है यार मेरे बाजू में जो बैठे कोई साफ सुथरा कपड़े वाला ही बैठे। तो मान लो वो कोई फटे कपड़े वाला बैठा हो और कोई बोलता है ना साइड हो, मतलब पीछे हो जा भाई। पर्यट हाँ, तो वहां का आदमी जो है सनाम का बोलता है, पाटे लीड़े ना जानी पिंड सनाम है, कि मेरे फटे कपड़े पर मत जाना, हमारा गांव का नाम सनाम है, वाह हम वाह वो वाह है जो इंग्लैंड में भी जाके ठोक के आते वाह। हैं। क्या बात है। तो तो सच्ची, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज द मेकिंग ऑफ अ मैन लाइक उधम सिंह हु वेंट एंड किल्ड जनरल डायर, और उसकी वजह से इवन पर्सन लाइक इटली एटली। एटली realized that you cannot keep these people subjugated. Now coming to the exact point of this decision, जब ये रेड फोर्ट ट्रायल्स शुरू हुए हैं, तो देखिए जब आदमी घमंड में आ जाता है ना, कोई भी हो वो, whoever is in power, घमंड में आ जाता है ना, उसको मस्त। सत्य नहीं दिखता है फिर। ये अंग्रेजों ने सोचा अरे यार ये हमने इनको आजाद हिंद फौज को तो हरा दिया, अब इनको हम रेड फोर्ट में इनके ऊपर ट्रायल चलाएंगे और इनको बेइज्जत करेंगे और अच्छे से इनका मतलब वो ना वो करेंगे, निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। हम्म, वो ये थे वो अति वर्जते बोलते हैं अपने ना, हाँ, शास्त्र में भी बोलते हैं ये अति हो गया। तो हाँ, और इट इज दी रेड फोर्ट ट्रायल्स विच टर्न्ड द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। उसमें अच्छा 3 ऑफिसर थे, एक सरदार, एक हिंदू और एक मुस्लिम, हाँ। अच्छा। शाहनवाज, सहगल और सहगल एंड ढिल्लन, हाँ। सो हम्म, लाल किले से निकली आवाज, ढिल्लन सहगल शाहनवाज, ऐसा नारा चलता था। अच्छा, तो तब पूरा देश जो है, the kind of publicity that Subhash Chandra Bose wanted when he attacked Imphal and the northeast, वो चाहते थे कि बंगाल अपराइजिंग में खड़ा हो जाए, but information did not reach or whatever be the reason, I don't want to go into that, but बंगाल डिड नॉट स्टैंड अप इन रिबेलियन। तो जो वो सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज रेड फोर्ट का सपना लेती रही, रेड फोर्ट नहीं पहुंच सकी, पर अंग्रेजों ने पहुंचा दिया। और वो भावना जो थी वो वहां पहुंच गई नींव और हिल गई। नींव हिल गई। और इन्होंने तीनों को इसका सजाए मौत दी गई, बट हाँ, उन्होंने आदेश में लिखा ये this cannot be implemented, so you are set free। क्योंकि ऐसे पोस्टर लग गए थे कि एक भी आदमी को अगर अपने वो कराया, फांसी लगाई, तो हम एक भी अंग्रेज इधर से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। तो अच्छा। और एक कुछ लॉजिस्टिकली भी प्रैक्टिकल इश्यूज हो गए थे। जो आजाद हिंद फौज के पीओडब्ल्यूज थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से छोड़ के आजाद हिंद फौज में चले गए थे, बाद में ब्रिटिश ने इनको कैप्चर कर लिया। जब ये लोग को वापस ट्रांसपोर्ट कर रहे थे युद्ध क्षेत्रों से, चाहे सिंगापुर, मलेशिया, जहां जहां से, थाईलैंड से, तो जो ब्रिटिश आर्मी थी तब की, ब्रिटिश इंडियन आर्मी और आजाद हिंद फौज, थोड़ी ना उनके लिए अलग अलग वो गाड़ियां बुक की थी, एक ही शिप्स में आ रहे थे वो लोग। तो इन लोग की सब मिक्सअप हो चुके थे। ओह। या सो जो भावना थी आजाद हिंद फौज की, इट हैड सीप्ड इनटू द कंप्लीट अच्छा। आर्म फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो हाँ, उनकी लॉयल्टी पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, यू नो। ओहो। सो व्हेन जब इन्होंने रेड फोर्ट ट्रायल्स चलाए हैं, तो इट वाज लाइक द फाइनल नेल इन द कैमल्स बैक। तो इनको छोड़ना पड़ा। और
तब तक ऐसा हो गया था। देखिए, हम अक्सर जलियांवाला बाग की बात करते हैं कि जनरल डायर तो अकेले थे, बट जो सोल्जर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो तो अंग्रेज नहीं थे, वो भी उठ के जनरल डायर को इंस्टेंट गोली चला वाह, सकते थे। खत्म यस और नॉट? बट दे डिड बिल्कुल। नॉट, बिकॉज दे फेल्ट दैट गोरा साहब है और हम उसके गुलाम है, हमको गोली चला। ये तो भावना है ना, भावना शिफ्ट कर दी सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद नेवल म्यूटनी हुआ है, हाँ, 1946 में। हाँ, और नेवल म्यूटनी को जिन्होंने लीड किया है, सम ऑफ दीज पीपल आर, इनफैक्ट देयर इज अ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिमिनल लॉयर्स ऑफ शिलोंग, हिज फादर was one of the leaders of the naval mutiny of 1946। और बाद में, ओ, हाँ, उनको बाद में हमारी सरकारों ने बोला हम ताम्र पत्र देते हैं आपको, ये वो, तो बोलते हैं आप तो किसी को भी देते हैं। ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, अच्छा, दे गॉट नो पेंशन, नथिंग, नथिंग एट ऑल, वेरी सैड। नो एम्यूलमेंट्स, नथिंग। और फिर उन्होंने अपना वहां से इनको नेवी से निकाल दिया, फिर अपना लॉ पढ़ा, फिर जाके शिलोंग शिफ्ट हो गए। अभी उनके बेटे वहां के नंबर वन लीडिंग लॉयर हैं वहां के। ये कितनी दुख की बात है, जो हमारे देश को आजादी दिलाई वो हाँ, वापस आर्मी में आ नहीं सके। आ नहीं सके, आ नहीं सके। तो मैं आपको क्या पॉइंट पे लेके जा रहा हूं कि लॉर्ड वेवल, बिफोर माउंट बैटन, लॉर्ड वेवल वाज दी वाइस रॉय। तो उन्होंने ये नेवल म्यूटनी से कुछ देर पहले ही अपना वहां पर जो इनका होम ऑफिस होता था, होम ऑफिस वाज द ऑफिस व्हिच कंट्रोल्ड इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड, यू नो, पार्ट ऑफ ओके। देयर मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो उसको लेटर लिख के भेजा था कि अभी बहुत साल तक अपने को भारत को आजादी देने की जरूरत नहीं है, दे आर अच्छा। टोटली सब्जुगेटेड पीपल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो उसके बाद विद इन वीक्स, परहैप्स जस्ट 2 और 3 वीक्स, ये नेवल म्यूटनी हो गया। और नेवल म्यूटनी वाज नॉट जस्ट ए म्यूटनी, उन्होंने 400-500 अंग्रेजों को फर्नेसेस में डाल दिया। रियली? यस, they killed so many of their officers, put them into furnaces, and तब अंग्रेज का पूरा ये बंटाधार। बंटाधार हो गया। वो समझ गए कि नाउ इट्स टाइम टू गो, या तो आप खुशी खुशी निकल जाओ। अच्छा, हुआ क्या, when this naval mutiny happened, they called in the Dogra troops, Gorkha troops, आर्मी को कॉल इन किया हाँ, to control them, to fire on हाँ। them. The army refused. रिफ्यूज्ड, राइट। That was the difference between what happened in Jallianwala Bagh and यस, 1946 naval mutiny, यस, because the army refused to fire on their own आई एग्री, people. आई एग्री। Yeah. My father's mama, Shri Mama, was a हाँ. part of the police force, and he became a part of that rebellion. I know firsthand from my family's Oh. talks when they were there. हाँ. They refused to fire on our own folk. Absolutely, absolutely. So grateful to your forefathers. Fathers. हाँ जी। तो because they refused to fire, the British understood. It's now time to go. बोलते हैं ना, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं सत्य वो है जो सिर चढ़ के बोलता है। तो उनको सत्य समझ आ गया। It was a writing on the wall. You go back now, either peacefully alive or you will never be. कॉफिन में जाओगे? हाँ, तो नहीं तो कॉफिन में भी जा पाओगे कहीं, उतने भी नहीं जाएंगे, फर्नेस से जाओगे सीधा। सब फर्नेस में जाओगे। तो so that point in time, and what also happened, their own troops refused to fire, and then they requested that British units should be sent from England. So वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला all units have been demobilized, खत्म। हमने तुमको घर भेज दिया, अभी हमारे पास आदमी नहीं है इधर भेजने के लिए, आपके जाके उधर फायर करने के लिए। So they realized it's impossible to rule this country anymore. It's about time to pack your bags. Huh? So that was the turning point. Huh? So what Prime Minister actually told the Chief Justice, acting Chief Justice of Bengal, No, is governor exactly of based on Bengal. these realities. And Governor Chief of Justice Bengal. was the acting governor of Bengal. अच्छा, 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 अच्छा। He was the acting governor of Bengal. So these were the incidents that led to the final days of the decision to leave. और हमारे 26,000 जवान भी शहीद हुए, हमारे भी सभी शहीद हुए बहुत सारे। किसमें? आईएनए के। Of course. आजाद हिंद फौज। INA जो थी उसमें टोटल स्ट्रेंथ was 50,000 plus, and half of it perished in पूरा this war. 56 या 60,000 कुछ था, हाँ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 56,000 था। तो उसमें से आधे से ज्यादा जो है they perished in the war. So वही है कि but they never got their due.
They never got their due. So that जो is, बचे थे वो, the rest were not never taken back into the army either. they were never taken back into the army. They were never Such a taken. sad thing. Who got us the real freedom, Uh, and what do I say? I don't know. so that is the stark sad reality. Yeah. So Okay, so now cut two. So Netaji disappears. We get our freedom. Yay! And uh, then now what happens is that after a few years after his imprisonment and all that, those are also very conspicuous years. But when he comes back and he's first seen in India, so you have met that person who has met him. Where you will tell us? okay, I will look. I will stick to what I know. All right. I will Okay. not stick to what others have seen or done. I will stick to what I know. That is that with grace of Puji Gurudev, Hmm. I had the blessed opportunity of starting the Art of Living chapter in Faizabad, Ayodhya. तो वहां पर जब मैंने 2007 में जाके आर्ट ऑफ लिविंग की उधर स्थापना की पूज्य गुरुदेव की कृपा से, तो Hmm. वहां पर कोशिश कराते कराते मेरा मेरा मिलना हुआ कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने बोला कि जी यहाँ पे घर में सुभाष चंद्र बोस जी रहते थे। वो नहीं थे तो उनका ही कोई आदमी था जो उनके बहुत करीब था, और ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर जिस घर में आखिरी बार ये गुमनामी बाबा रहे हैं, I was taken to that house. It is called राम भवन। वो शक्ति सिंह जी हैं, उनसे मुलाकात हमने किया, और वहां पे उन दिनों उसी उसी मकान में, उसी आउट हाउस में रादर, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी और रादर आई शुड से गुमनामी बाबा रहते थे। तो वहां पे उन दिनों एक इंडियन की किसी गैस एजेंसी चल रही थी। हाँ, तो सो दीज दे टोल्ड मी, ये जो मेरे कोर्स पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने मुझे वहां लेके गए थे, इन्होंने मुझे बताया कि जब लोग वो बच्चे थे, वो बच्चे बचपन से उनका उस घर में आना जाना था, इनके राम राम भवन में। तो कहते कि हम लोग खेलते हुए जाते थे पिछली साइड पे भी, तो हमको बता रखा था ये पर्दा नहीं हटाना है, यहाँ पर्दे वाला Hmm. रहते हैं, ऐसा ऐसा करके। और फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी विभूतियां मिलने आती थी उनको। People who Ah, are very powerful people in this country used to come and meet him. yes, yes. So this is what I got to know firsthand. And another thing I got to know firsthand is that वहां पर मैं जिस घर में रह रहा था, I was staying in a government official's house who was associated with us. तो मैं उनके घर में रह रहा था। उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो बाबा थे उनका सारा सामान पड़ा हुआ, और कहते कि हो ना हो वो सामान जो है सुभाष चंद्र बोस जी का ही हो सकता है। उसमें यहाँ तक कि कहाँ कहाँ किन देशों की करेंसीज है, ये है, एवरीथिंग दे एक्सप्लेन टू मी, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैज कम आउट ट्रू आल्सो नाउ। इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक रिसर्च हुआ था। हाँ जो जी। उनकी लिखाई थी ना, जो बाबा गुमनामी बाबा की, उनकी हाँ लिखाई और जो ओरिजिनल लिखाई जो सुभाष जी की 45 के पहले में जो रिकॉर्ड में थी, वो हूबहू मैच हो रही थी। करेक्ट। और उसके बाद उन्होंने रिसेंटली जो है एक कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर है, हाँ जिससे जी। जब इंसान का बाद में का और पहले का फेशियल फीचर्स मैच किया जाता है, हाँ तो वो जी। बिल्कुल ही बिल्कुल काफी हद तक उन्होंने कहा ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इट वाज द सेम पर्सन। अब वो क्या है हम तो नहीं कह सकते, पर सपोजिटली। Yeah, and also there are people who have met him in the Himalayas. Okay, मुझे कोई बिफोर ऐसे, फैजाबाद, बिफोर ही वेंट टू फैजाबाद, यस अयोध्या। यस, हाँ जी, अर्ली 70s और सिक्सटीज, लेट सिक्सटीज। 60s में उनको हिमालय में कुछ लोग मिले हैं। हाँ, मिले थे, जिनका मेरे से भी परिचय है, और वो मैं उन पे पूरा विश्वास कर सकता हूँ। पर स्वाभाविक है, अनलेस इट बिकम्स ऑफिशियल थिंग, nobody would like to come out and say all this, वो वही भैया because मैं खोजने की everybody कोशिश wants कर to रहा be on हूँ the कब right से side of the, आपसे। वो बहुत सालों से मैं हाँ कुछ जाना, हाँ यही हाँ। तो हमारे श्रोताओं को कुछ वो ये है बताइए। कि वो एक्चुअली वो उनका उनका निर्णय है, उस बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। वो लोग जब चाहेंगे तब वो बोलेंगे। तो पर वो मिले थे, और वो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया वो एकदम मैं पूरा विश्वास कर सकता हूँ। बहुत ही जी मतलब जी। विश्वास विश्वास के पात्र है।
तो जी इससे जी ज्यादा मैं चलो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक वो है, लेट्स बोलेंगे होप। ये इट इज देयर प्रेरोगेटिव, नॉट माइन। अच्छा, लेट्स होप इट But कम्स आउट। they have met in the late 60s in the Himalayas. They met राइट him. राइट राइट। ओके, सो लेट्स कम टू फैजाबाद नाउ। Yeah, बैक। so Faizabad was that. I mean, मेरे को एक्चुअली तब बहुत ज्यादा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तब तब मैं बर्मा पहुंचा नहीं था एक्चुअली, मैं बर्मा उसके बाद गया हूँ। और व्हेन आई वेंट टू फैजाबाद इट वाज 2007, आई वेंट टू बर्मा इन 2011। तो हाँ 2007 में मेरे को वो लेके भी गए, और मैंने जितना कर्सरली मुझे पता लगा वो यही था कि वो उस घर में रहते थे, और वो गुमनामी बाबा थे, और उनका सारा सामान वो था रूबरू ऐसा ही था चश्मे जैसे वगैरह सब मिले हैं उनके। everything was as it is belonging to Subhash Bose, and also that people in the government who are also close to me, जिनके मैं पास रुका हुआ था, उन्होंने बताया जी वो उन्हीं का सामान है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में बंद है। So I mean, this is how close one can get to the truth as possible. और इससे ज्यादा मुझे मालूम भी नहीं है, and I would not like to claim that I do know, you know. No, but it's a So very sad part that he, after coming back also India, he couldn't get the due credit, तो मैं and तो वही I कहूंगा don't ना know. कि कई लोग के भाग्य में होता है कि वो, ये तो आई मीन दिस कैन बी एन एक्सक्यूज आल्सो, कि वो देश के बाहर रह के देश के लिए ज्यादा काम कर पाते हैं, है ना। Uh, तो देश का नाम। the- बट आई वुड अगेन गो बैक टू वन थिंग कि अज्यूमिंग दैट गुमनामी बाबा वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो hmm, विच ओनली द गवर्नमेंट विल टेल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब उस आदमी की आप सेक्रीफाइस देखो, उस आदमी का vision, कमिटमेंट देखो, उसका वैराग्य देखो। हाँ, वैराग्य, मतलब उन्होंने सब कुछ निछावर कर फैमिली, दिया, अपनी फैमिली भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ अपने दिया बच्चे को उन्होंने, छोड़ दिया। सब बच्चे को, बीवी को, माँ, चाचा, पिता, सबको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और वो एक ऐसी, मतलब वो जिस हालत में रहे हैं बस्ती में, यूपी में, जहां जहां भी रहे हैं, वो ऐसी दयनीय स्थितियों में रहे हैं। अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो चलो एक छोटा सा प्रकरण था, जो 30 साल के करीब उन्होंने भारत देश में बिताए हैं, उत्तर प्रदेश में, और हाँ किन स्थितियों में बिताए हैं। हाँ, वो भाई, तो जो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, हाँ, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो उस आदमी ऐसी अज्यूमिंग assuming that he नामी was बाबा boss। was actually नेताजी, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस उनका। उनको देखो, उनको कुछ अपना पर्सनल कंफर्ट नहीं देखा, अपना कुछ नाम नहीं, रिकग्निशन नहीं, नथिंग। So is it certain that Gumnami Baba did pass away in 85 or around that time, or I is he? was not there. I say, but I'm saying, assuming he was, Netaji is sacrificed, staying away and still wishing the best. क्योंकि ऐसा सुनने में है कि अगर वो आ जाते तो it would have created more problems for the country. भारत देश में शायद sanctions लग जाती, या उनको ऐसा बहुत कुछ हो सकता था। So नहीं, एक टाइम पे रिलीज होने भी वाली थी, बात को मैं पता नहीं, वो शास्त्री जी बता रहे थे, पर होने पर वो हो नहीं पाई शायद। yeah, whatever. I mean, I'm तो in no position to go into all that. राइट राइट राइट, एनीवेज वी शुड नॉट। कोई बात हो जो रह गई हो हमसे पूछना, आपसे, आप बताना चाहें। अभी तो जिन लोगों को पता वो बताएंगे। हमें जो पता था हमने बता दिया। बस यही था कि हमारे दिल में था कि वो जो लोगों ने कुर्बानी दिया है, पीपल जी। फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो हु कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द आजाद हिंद फौज, उनको कुछ तो कुछ इवन जर्मनी, जर्मनी ने बड़े अच्छे से रखा था बोस जी को। देखा जाए तो ही हैड अ फैमिली देयर, एंड देन व्हेन ही रियलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी केम टू गो टू जापान, he sacrificed and went to Japan to करेक्ट finish his mission off। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो आदमी का बहुत बड़ा विजन था जी, उनका बहुत बड़ा विजन था। आई टेल यू पीपल, I mean, everything is depending on how big your vision is, and his vision was really, really big. Sometimes I feel very sad for him, but well, we move on, and the best way is to keep working for the nation. That would be a tribute to him, that's it। Yes, that's the greatest tribute to him. बाकी ये सब में जाके बहुत ज्यादा भी क्या करेंगे, है ना। क्या करें। ठीक है ना। ठीक है जी, आई होप दैट द पीपल इन बर्मा हु हैव सैक्रिफाइस, उनकी फैमिलियों को कुछ रिकॉग्निशन मिले, एंड इफ समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट लिसंस टू दिस, आई होप समबडी विल वर्क टुवर्ड्स इट someday and give it them the due recognition Sure, that I they hope have। the same. I hope the same. All right, Chintan bhai. All right, Great, this is so great nice to have, and a and really momentous Jai Hind to you.
Right, right. Jai Hind. Jai Jai, Hind. Jai, Jai. So now we will have Sanjeev Bhai play. Can you share something about the photographs?